Hello and welcome to Beautiful Mind. I am Arun Kumar. In the chapter of motivation, there is a theory, a very important theory, Maslow's need hierarchy. So I was thinking that why need hierarchy is there in um, the chapter of motivation. So I have analyzed few basic questions that will help you a lot. And then if you know the answer to these questions, you can write in answer to any kind of question related to Maslow. Let me tell you one by one. First thing is that needs. Why do we study needs in the chapter of motivation? In when we try to understand human motivation, why do we study needs? So very first answer is that it is a need theory that says that need motivates. Our need motivates. This is a need, and need gives us drive. This drive is called motivation, and we look for some goal. Suppose there is a lack of water, then we will feel some tension in the body due to cellular dehydration, and then we look for here water. So see this thing, the concept is that need motivates, means the need that we feel is the basis of feeling motivation. All the motives we have, all the drive we feel, it is because of the need. Now question is that how many kinds of need we have? So if you compare with the animals and all, you will find that physiological needs are there. For example, food, for need for water, need for food, need for basic survival need like sleep, optimal temperature. Many things are there. These are important for survival. Without fulfillment of this need, we cannot survive, you can say. Okay. Then we have psychological needs also, safety, security needs. We have social need also, relatedness need. So many needs are there. So okay, we have several category of need. You can say several categories. How do these needs motivate us? Do they come at the same time? Do they work at the same time, or there is some order? Abraham Maslow is a humanistic psychologist. He is credited as father of humanistic psychology. He came up with the concept of need hierarchy. In that, he said that actually needs comes in order. There are certain needs that are very basic and important for survival that take precedence, means that come first, and then comes other needs. For example, suppose we have need for music also, because love music. Okay, there is a aesthetic need, and we have need for water. We need for food. What will come first? What will motivate us for? It is said that suppose I am singing a song and you are hungry, you will not feel motivated to listen to that kind of thing. Based on this common experience, he said that this need will come later and this need will motivate us first. So he analyzed different sort of needs systematically, and he came up with the idea that there are different sorts of need, and there is certain relations among them. Need equations are there, and you can say that order of preferences, and simple formula is that these needs motivates us. So he analyzed Abraham Maslow, all sorts of need in a human being. So in the beginning, he said that there are 5 sorts of need. Later he analyzed that no, there should be 2 more set, and then again he added more. So in the final version, he came up with several layers of several types of need, and he suggested their order. Okay. So if you ask me, need not to draw the drawing and all this thing, I will show you from the internet, and then we will discuss. Let me show you. See this thing. If you see this thing, Maslow's need hierarchy, I have taken from internet, because why I should draw all these things? I am explaining the concept. Physiological needs. Physiological needs is very fundamental, very basic, and at the first level, means order you should move from bottom to
top. So this is the first thing, because this is existential, this is the survival need. Food, water, sleep, temperature, all these things comes under physiological need. If you are a student of psychology, you must be having knowledge of that thing. Next is safety and security need. Means what? We want to protect our body also. We want to protect our, uh, me and from any kind of threat, be it physical or be it some, suppose psycho. Suppose you have requirement for job, okay, but you want that what happened if my job is no more in future, then you want then some secure job. No, that is also a security need. So safety and security, both safety from threats and security from all anxiety, these kind of things are there. So psychophysiological is there. Belongingness and love need. This is a social need. Category is this thing. This is a physiological thing. Psychosis is social. Social means we. This is a we have in we means human being inherently have need to connect with other. We need we require no. The people should we try to be with other. We love to be with other individuals. We have because we need love. We need different sorts of approvals from there. We need connect with them. So this is a social thing. We are essentially social being. Aristotle, human beings are social being. You are getting my point. So human beings are social beings. This is also very important things to note. So this is called love and belongingness need. And see, all this need we are analyzing, but all motivates us. Take example in Holi. Despite there are so many problems in train, people will buy a ticket or without ticket or somehow, and will travel thousands of kilometers in a standing position near bathroom in the train. See this thing? Near washroom in the train, they are studying. Why? Because we will. If you ask the person would say that because I want to meet my family. So see why you are feeling so strongly for family. This is inherent need, getting love and belongingness. So this is very important. You try to understand the order. Try to understand the order means if it comes to food, if it comes to relation, what will come first? Food. Suppose you are hungry and you do not have money to get food, and you are you want to meet your family also. Suppose I am a worker, migrant worker in Delhi. Then my supposed employer is saying that I will not give you leave. If you want money, then you no leave in Holi or something. So I can say okay because of that thing, because this will take precedence, something like that. So see the under how human motivation works. Getting? Then comes esteem need. This is called ego need. It means in order to survive, we have some, we need money, we need regard also. This is very important things. We need regard also. In organization, when you join some organization, you get suppose good salary. But suppose manager or employer do not behave properly with you, your self-respect will be hurt, and then probability is higher that you would quit from there. So see this thing, why you are doing this thing? Your salary is very good because no, it doesn't give respect. बहुत ही rude है वो. That is why. So what kind of need is there? It is called esteem need. हमें जिंदा रहने के लिए कुछ अपने इज्जत की जरूरत होती है. Something like that. Self respect भी है ना, ego need. हमें we need regard also. We need recognition also. हमारी बातों को तो जैसे मैं कुछ हार्ड वर्क कर रहा हूँ तो उसको कुछ अप्रिशिएट भी करे लोग. ये हमारा ईगो नीड्स माना जाता है, सेल्फ रिलेटेड नीड्स है, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी साइकोलॉजिकल. सो सी द थिंग, एस्थेटिक नीड और कॉग्निटिव नीड ही एडेड लेटर. शुरुआत में ओनली 5 नीड्स थे, इसके बाद सीधे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स उसने ऐड किया था, लेकिन बाद में उसने करेक्ट किया. सो कॉग्निटिव नीड्स, मोटिव टू नो, मोटिव टू अंडरस्टैंड, मोटिव फॉर इनक्विजिटिवनेस. इंसान के अंदर जानने के भी बहुत एक नीड होता है. आप बच्चों को व्हेन यू पुट इन्फेंट ऑन द फ्लोर, तो वो देखो एक्सप्लोर करता रहेगा इधर से इधर, इधर से इधर.
चीज़ों को उठाएगा, माउथिंग करेगा, फेंकेगा. So what is that? That shows that inherently we have a need to know something. जानने के लिए हमारे पास जो सेंसरी ऑर्गन्स है ना, 5 सेंसरी एक्सटर्नल ऑर्गन्स, वो एज पैसिव नहीं रहते, एकदम फ्रॉम इनसाइड एंड by innate need is there, and that we keep exploring the things. हमारे चीज़ों को जब समझते हैं ना तो ठीक लगता है. we try to understand also, we are rational being also, we reason also, so we know and we try to understand, यानी कि हम लॉजिक से जोड़ते भी हैं चीज़ों को. so this is a need. Well, yes, it is a cognitive need, psychological need. और आपको लगेगा कि ये कैसा नीड है, कई लोगों को लगता होगा. बट लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट सपोज आप एक ऐसे घर में रखो जहाँ पे कभी कोई कुछ बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, या आपका फ्रेंड ही ऐसा हो जो कभी कुछ बोलता है, उसके बाद में कोई लॉजिक ही नहीं है, आप किसी को तो इंसेन कर देते हो. सी देखो, अगर किसी की इंसैनिटी आप कह रहे हो तो उसमें सबसे बड़ा एक क्राइटेरिया यही होता है कि उसकी बात में कोई कोहेरेंस ही नहीं है, लॉजिकल कनेक्शन ही नहीं है. देखो कितना बड़ा नीड होता है. we define insanity on the basis of that thing. तो वही है, कॉग्निटिव नीड है ही, कि हमें चीज़ों को समझ के लिए ड्राइव होता है अंदर से. और उसी तरीके से आप देखेंगे कि यू आर इन अ रूम एंड देन सब कुछ बिखरा बिखरा, कैसा लगता है? सभी तो रूम में ही है, बट यू फील अनकंफर्टेबल. बट व्हेन थिंग्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड प्लेस्ड इन एस्थेटिक मैनर, यू फील गुड. सो इज इट अ साइकोलॉजिकल नीड? वेल यस इट इज, बिकॉज कई लोग को उस एनवायरनमेंट में वो बीमार हो जाते हैं. दे you're getting, they fall sick. So why? You are giving food, water, everything, but just environment is very messy. They will become sick. They will, अब उसको कैसे, because this need is not fulfilled, वो वहां से भागना चाहेगा, escape करना चाहेगा वहां से. Why? You are leaving that place. But उस कहीं ऐसे जगह पे जहाँ बहुत गंदगी हो या अनप्लीजेंट सा हो, उससे आप निकलना चाहते हैं, वो भी एक नीड है ना. दैट इज कॉल्ड एस्थेटिक नीड. नीड फॉर हार्मोनी, कंसिस्टेंसी, ऑर्गेनाइज एनवायरनमेंट, सब जो ऑर्डरली एनवायरनमेंट, ये हमारा नीड है. गेटिंग, ये हायर नीड्स है. एंड देन नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहा. लाइक ह्यूमन बीइंग in the beginning is very general, but as we grow we become individualized. So this is pathway, individuations. शुरुआत में हम अकेले होते, लोगों के साथ होते, सारे बच्चे एक ही लगेंगे. धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते उनकी इंडिविजुअलिटी होती चले और सब डिस्टिंक्ट होते चले जाते. तो लाइफ एक पूरा प्रोसेस है कि हम जनरल टू स्पेसिफिक होते चले जाते हैं. इसी भीड़ में हम अपनी पहचान लेकर एक अलग हो जाते हैं कि हम अलग है ना. तो पैदा होते सारे बच्चे एक लगते हैं. तो समथिंग लाइक दैट. एंड दिस आइडिया हैज बीन टेकन फ्रॉम कार्ल जंग. वो इंडिविजुएशन एक प्रोसेस ही बोला, तो सेल्फ रियलाइजेशन होता चला जाता. उसी को यूज करके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोला कि नेचर हैज गिवन अस सम इनहेरेंट पोटेंशियल. कुछ लाइकिंग दिया है, कुछ इंडिविजुअलिटी का दिया. हर व्यक्ति यूनिक है, ये कॉन्सेप्ट है मास्लो का. और उस यूनिकनेस को वो एक्चुअलाइज करता है, रियलाइज कर लेता है अपने को. तो ये एक नीड है और वो अपने को फ्री महसूस करता है. मतलब कि यू शुड डू दिस थिंग, वो सब तो अपने सोशल नॉर्म्स से भी निकल के आते हैं. बट देयर आर सम इनहेरेंट रिक्वायरमेंट, दैट इज कॉल्ड सेल्फ रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स. आपकी इंडिविजुअलिटी या यूनिकनेस से निकला हुआ कोई नीड है जो आपको कहेगा. जैसे आपको मोटे मोटे तौर पर कहते हैं कि लाइफ, आई हैव मीनिंग, दिस इज द मीनिंग ऑफ माई लाइफ. कि मैं अल्टीमेटली कई लोग देखते हैं कि जॉब छोड़ देते हैं और अपना कुछ स्टार्ट करते हैं गांव में आकर. अभी मैं वैसे जोहो का जो ओनर है, क्या नाम है, श्रीधर बेम्बो, तो वो यूएसए से छोड़कर अपने तमिलनाडु के एक गांव में आकर अपना वेंचर शुरू कर लिया. कई लोगों को एम्प्लॉय किया, हजारों लोगों को. वहाँ तो बड़ा अच्छा जिंदगी जी रहे थे, बहुत ही अच्छे थे, लेकिन उनका अल्टीमेटली वो लगा होगा. So nobody can explain this thing. Remember this thing. This motivation is highly personal, very subjective. इसका कोई environment में दिखेगा नहीं कि इस कारण से किया है इसने. तो ये लास्ट में एक और उससे भी ऊपर जोड़ा उसने, वो कि ट्रांसीडेंस. ट्रांसीडेंस भी एक प्रोसेस है दैट पहले हम क्या करते हैं कि
हमारा मोटिव होता है ये मेरा अपना है वो पराया है, लेकिन धीरे धीरे ये जो नैरोनेस है ना उससे निकल के हम बाहर ट्रांस जैसे कर जाते हैं, उन्हें पार कर चले जाते हैं। एंड दैट इज अ फिलोसफिकल काइंड ऑफ नीड। हम पूरे मैनकाइंड को समझना चाहते हैं, उनपे उसके डेवलपमेंट की बात है, पूरे यूनिवर्स के बारे में समझना चाहते हैं, लाइफ क्या है, मीनिंग क्या है, ये मेरा तेरा वाला लेवल पे ट्रांसेंड कर जाते, इसलिए इसको ट्रांसेंडेंस सर, ये जो है ना ट्रांसेंडेंस नीड का, ये भी कार्ल जुंग का दिया ओरिजिनली। तो कार्ल जुंग ने इंडिविजुएशन एंड ट्रांसेंडेंस दो ऐसे चीजें दिया जिसको पूरा का पूरा ये मैस्लो इज इंस्पायर्ड बाय कार्ल जुंग। कार्ल जुंग यू नो वन ऑफ कलीग ऑफ सिगमंड फ्रॉइड, यू नो दिस, अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट है तो ट्रांसेंडेंस कैसा नीड है, आप सिंपल टर्म में कह लो फिलोसफिकल नीड है। इंसान एक फिलोसफिकल बीइंग भी है, बायोलॉजिकल बीइंग है, हार्मोन्स के कारण है, तो लेकिन लाइफ में ना मीनिंग नहीं होना, आप खा रहे हो पी रहे हो रह रहे हो, फिर कभी कुछ समय बाद आप लगे मैं कर ही क्या रहा हूँ, आपको सब कुछ मैं दे दूं ना कमरे में तब भी आप नहीं रह पाओगे, क्योंकि आप सोचते मेरा मीनिंग क्या है लाइफ का। वी इनहेरेंटली फील एंड वी स्ट्राइव फॉर दैट थिंग, गेटिंग। सो दिस इज मैस्लो होल सेट ऑफ नीड, 1 2 3 4 5 6 7 8 कर दिया उसने, शुरुआत में 5 नीड्स उसने बताए थे। तो खैर एनीवे दिस इज इट इज नॉट अबाउट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नीड वी हैव, उसे हो सकता है एक और निकल के आ जाए, वो नहीं, सवाल है कि वी हैव डिफरेंट सेट ऑफ नीड्स एंड दीज नीड्स become the basis for our motivations. And second, all needs are not equipotential, certain needs take prior seat than other, certain needs में ज़्यादा प्रायोरिटी होता है, वो ये सब सारी चीज़ें नीड्स पहले होंगी तब ये सब एक्टिवेट होगा। इसी कारण से एक दूसरा कैटेगराइजेशन उसने सिंपल कह दिया कि दो तरह की चीज़ें होती है, एक मोटिवेशन होता है, एक मेटा मोटिवेशन होता है। तो जिंदगी में हम पहले मोटिवेट होते हैं, है ना, और दूसरा तब मोटा मोटिवेशन आता है, बड़ा मोटिवेशन। तो वो जो मोटिवेट होते हैं वो किसी न किसी कमी से आता है, डिफिशियंसी नहीं, जैसे पानी नहीं है, प्यास नहीं है, पैसे नहीं है, रिलेशंस खराब है, ऑल दीज आर डिफिशियंसी नीड्स। तो उसने कहा कि इतने नीड्स को आप दो सेट पे बांट सकते हैं। एक तो आप कह दीजिए कि डिफिशियंसी, यानी किसी डिफिशियंसी मीन्स यू हैव सम आयरन डिफिशियंसी, क्या आयरन की कमी है तो आपका एक नीड पैदा होता है। उसी तरीके से ब्लड डिफिशियंसी है, उसी तरीके से रिलेशंस नहीं है तो डिफिशियंसी है। तो डिफिशियंसी से कारण खाना पीना नहीं है तो डिफिशियंसी कमी है, तो दैट डिफिशियंसी विल मोटिवेट यू, उसको डी नीड कहा उसने। और एक हायर ऑर्डर नीड्स हुआ जिसको कहते हैं बीइंग नीड, मतलब आप हो, आपके होने का वो नीड है, मतलब आपकी इंडिविजुअलिटी से जुड़ा हुआ नीड है। तो देखो इस यहाँ पर भी देखो ये जो है ना, ये सब सारे डिफिशियंसी नीड है। ये वाला कर्सर आप ऊपर नीचे कर सकते हो, कुछ नीड है कॉग्निटिव नीड भी, अगर कई लोग डिफिशियंसी नीड कर लेते अब्राहम मास्लो ने, लेकिन हालांकि कहा इससे ऊपर वाले सारे नीड्स जो है दीज आर ग्रोथ नीड, जिसको बीइंग नीड, ये ग्रोथ है, ये डिफिशियंसी है। सो दीज थिंग विल मोटिवेट पीपल इन सर्टेन वे and these will also motivate people. This is called motivation, this is called meta motivation. You are getting? So ये आप ये तो हर बुक में मिल जाएगा ना, इसलिए मैं अलग से ड्रॉ नहीं किया हूँ, इंटरनेट से ऐसे लेके आपको दिखा रहा हूँ, बट आई एम एक्सप्लेनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस थिंग। तो डी नीड का मतलब क्या हुआ कि किसी न किसी चीज की कमी है आपके अंदर, वो चीज चाहे सेलुलर लेवल पे हो या साइकोलॉजिकल लेवल पे हो। सपोज यू आर नॉट यू डू नॉट फील सिक्योर, तो कुछ ना कुछ कमी है ना, सिक्योरिटी के अंदर की कमी है, चाहे सेलुलर नीड हो या साइकोलॉजिकल नीड हो, कुछ कमी है, इस कारण से वो मोटिवेट हो रहा है, यू वांट टू गेट इट। पैसे नहीं है तो यू वांट टू अर्न मनी, तो वो आपको जिस तरह से गाइड करेगा। इफ यू एनालाइज द pattern of behavior caused by deficiency motivation means deficiency needs, उनका जो नेचर है, if you analyze the pattern of behavior caused by meta motivation means being need, are quite different in the sense that this will if you do not have it, it will create tension, getting, and you will feel motivated to achieve it, and once you achieve, the tension will come down. What about growth need? If you achieve that thing, then tension will increase. Tension का मतलब वहाँ भूख हुआ, गले की need है, that will also increase, and now you will try to want more and more. तो जैसे आपने कोई चीज जाना कि that mass and velocity speed का कोई relations नहीं है, so then you come to know in quantum physics that
नो नो देयर इज सम रिलेशंस एंड देन अरे शुरुआत में तो हमने कहा था नहीं एंड देन नाउ आई मास एंड स्पीड आर कनेक्टेड मतलब आप किस स्पीड से चल रहे हो उससे आपका मास का बॉडी मास कोई लेना देना नहीं है। न्यूटनियन मैकेनिक्स में कहा फिर आइंस्टाइन का आया और भी थ्योरीज आई। आप कहोगे यार ये क्या है, लाइट पार्टिकल लाइक है या वेव लाइक है, आप कह रहे हो कि वेव लाइक भी है पार्टिकल लाइक, व्हाट इज दिस, तो वो और इंक्विजिटिवनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। यू आर गेटिंग एनीवे, मतलब आई वांट टू मेक ए पॉइंट हियर दैट द वे डी नीड्स गाइड आवर बिहेवियर, मतलब डी नीड के मोटिवेशन से, डी नीड से जो मोटिवेशन पैदा होता है और उससे जो बिहेवियर दिखता है उसका नेचर, उसको अगर आप देखें उसकी प्रकृति को समझें एंड देन ग्रोथ नीड के कारण जो मोटिवेशन पैदा होता है, जैसे ग्रोथ नीड आप कहते हैं कि मुझे अपनी पहचान बनानी है, तो ठीक है ये स्टेम नीड भी हो सकता है ना, मुझे ये हमारा आइडेंटिटी बनाना है, हमारे अंदर एक क्राइसिस आइडेंटिटी, तो वो स्टीम नीड है, वो एक डी नीड के ही तरह। लेकिन अगर आप ऐसे सोचते हो कि चीज़ों को हम इस दुनिया को ऐसे बना के जाएं जो लोग ज़्यादा कंफर्ट में रहे और उनको ज़्यादा सुविधा हो चीज़ों की, जैसे अभी आप कह रहे हैं एनर्जी क्राइसिस हो गया, अगर कोई ऐसा कह रहा है कि नहीं हम हाइड्रोजन को इस लेवल पे लेके आएंगे जो कॉमन यूज में आ जाए, तो यानी आप कोई डिफिशियंसी थोड़ी, अब खाने पीने की थोड़ी दिक्कत है, आप तो हायर ऑर्डर चीज़ों को समझ रहे हो जहाँ पे इंडिविजुअलिटी और इन सब चीज़ों से दूसरे के कारण या दूसरे के बॉडी की कमी के कारण नहीं कर रहे हैं, आप अपने ग्रोथ के लिए कर रहे हैं। यू आर गेटिंग, उनके कारण से बिहेवियर बिल्कुल अलग दिखेगा, बिहेवियर का पैटर्न उसका बिल्कुल अलग दिखेगा। सो जो सेल्फ एक्चुअलाइज होते हैं, जैसे आप कुछ काम करते हो, एक एग्जांपल देता हूँ, आप कुछ काम करते हो तो क्या होता है, आप करते हो कि मुझे तारीफ मिलेगा, मुझे पैसे मिलेंगे, इस कारण से ना। कुछ लोग काम करते हैं वो इस कारण से नहीं कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं कि उनको काम में ही आनंद आ रहा है, इंट्रिंसिकल मोटिवेशन, तो हायर ऑर्डर नीड है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नो। तो और सपोज यू आर at some level you work when you do not have this kind of feeling that ये अपना वो पराया, so we are not motivated by this is mine, this is yours, तो you want to maximize your interest, maximize your benefit, ऐसा तो नहीं करते आप, तो वो एक कॉन्सेप्ट अलग है ना। कुल मिलाकर नीड हायरार्की ऐसे दिया है, इसका इम्पोर्टेंस ये नहीं है, ये इम्पोर्टेंट ये है कि Maslow's contribution is that he for the first time he said that we have different sorts of needs and all these motivate us, and there are certain needs that motivates us in a way that are different from other needs, D needs and B needs, clear। अब आते हैं इसको, मैस्लोस के थ्योरी जो आपने दी है कॉन्सेप्चुअल है, इंट्यूटिव लगेगा फिलोसफिकल टाइप से लिख दिया इसको। इसको क्या है कि मतलब सपोज आई एम मोटिवेटेड एट दिस लेवल एट दिस लेवल एट दिस लेवल, तो हम वापस इस लेवल पे आ सकते हैं कि नहीं, जैसे बहुत ही अच्छा जॉब हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है, देन आई फील हायर ऑर्डर नीड्स एंड आई मोटिवेट, सपोज माई job is no more, then in that case how my behavior will be changed, how my motivation pattern will be changed। थ्योरी इज साइलेंट ऑन दिस थिंग, वो रिग्रेशन होता है कि नहीं इस पे नहीं बताया, इंडिविजुअल डिफरेंसेस कम काउंट किया, सबको जनरल तरीके से बताया, कल्चरल डिफरेंसेस साइलेंट है, कुछ ज्यादा नहीं है, ये यूनिवर्सल बनाने की कोशिश की, सभी ह्यूमन बीइंग में यही होता है। जैसे होता है ना कि कई लोग को ईगो नीड्स किसी कल्चर में ज्यादा होगा, कई लोग में इसी लेवल पे ज्यादा होते हैं, ऊपर वाला एक्टिवेट ही नहीं होता। ही वॉज ट्राइंग टू से दैट इन जनरल दिस हैपेंस, और वो सही भी था, लेकिन उसमें कितना, हाउ मच ईगो नीड्स वी हैव, कुछ कल्चर में ईगो नीड्स बहुत ज्यादा होते, कुछ में कम होते, है ना। उसी में किसी में सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स बहुत ज्यादा, कॉलोनियल कल्चर और हम लोग का जो कलेक्टिव कल्चर है उसमें सोशल नीड्स बहुत ज्यादा था, है ना, लव एंड बिलोंगिंग नीड्स थी। इंडिविजुअल इन कल्चर, इंडिविजुअल मीन्स इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर, देयर इज social need, but it's it is not so profound and its quality is different। तो इन सब चीजों को वो अच्छे से वो उसमें साइलेंट है, मतलब क्लियरली ये नहीं कहा कि नहीं होता, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है उसका। तो इसको वो कनेक्ट करने के लिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, उसने एक एल्डरफर नाम का था, एल्डरफर,
उसने एक बोला कि इसको सिंपली कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हैं आप, 3 सेट रख लीजिए, ERG मॉडल, ERG मॉडल कर दीजिए। 3 ही तरह के नीड होते हैं, इसको इतना ज्यादा बड़ा करने की क्या जरूरत है। हायरार्की में देखना है तो बस 3 तरह के नीड कर लेते हैं बस, एग्जिस्टेंशियल नीड, relatedness need, and the growth need. So he said, Alderfer said that you have complicated the things. It could be simplified as simple as this one. Then E for existential need means survival related existence, food, water, sleep, सेफ्टी सिक्योरिटी, ये एग्जिस्टेंशियल नीड है, हमारे हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। तो ये एक नीड है, एग्जिस्टेंशियल नीड। relatedness needs social need है, we are social being also, so we try to connect also, we need love, we need to feel we feel belongingness एक बड़ा नीड है। हम दूसरे से अपनी बात नहीं कहते, कोई बात करने वाला नहीं हो तो बीमार हो जाते, इसीलिए तो हमने अभी एक्सप्लेन ही किया, तो उसको सोशल नीड को यहाँ पे डाल देते हैं और बाकी को ग्रोथ नीड में डालते हैं, उतना कॉम्प्लिकेट क्यों करते हैं। और इसने ये कहा कि देखिए 3 चीजें हैं, रिग्रेशन भी हो सकता है, अगर आप ये है कि ऊपर जा रहा है कोई चीज तो ये वापस भी आ सकता है। एक तो ये हो गया रिग्रेशन, जो रिग्रेशन मतलब कि केवल ऊपर नहीं जा रहे, नीचे भी आ सकते हैं। दूसरा साइमल्टेनियस एक्टिवेशन, साइमल्टेनियस एक्टिवेशन मींस एट द सेम टाइम ऑल नीड्स मे बी फंक्शनल बट इन डिफरेंट स्ट्रेंथ। जैसे मतलब एक समय में हमारा तीनों लेयर का लीड एक्टिव है, लेकिन एग्जिस्टेंशियल ज्यादा हो सकता है, वो रिलेटेडनेस से कम, उससे उससे कम। लेकिन ऐसा नहीं होता कि ओनली दिस ओनली दिस ओनली दिस, ऐसा नहीं। तो सी रिग्रेशन इज पॉसिबल वंस सपोज हायर ऑर्डर नीड्स, we are operating at higher order needs means meta motivation, but suppose we our lower order needs are frustrated, not fulfilled, then we can come down to also। तो एक तो ये चेंज कर दिया इसने अल्डरफर ने ERG थ्योरी में। दूसरा जो कहा कि ये तीनों नीड साइमल्टेनियसली भी ग्रो कर सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन अलग अलग पोटेंशियल रहेगा, ऐसा अलग अलग उसमें एम्फेसिस रहेगा। तो ये दूसरा चीज। तीसरा कल्चरल डिफरेंसेस हो सकता है। ये 3 बातें उसने इंडिविजुअल डिफरेंसेस उसी में डाल दिया कि बेसिकली दिस whatever shortcomings were there in Maslow's need hierarchy, he attempted to simplify, and most important thing that this is based on empirical समझते हैं ना, एविडेंस। जो मैस्लोज की थ्योरी है वो दैट इज लार्जली कंसेप्चुअल, उसने कॉन्सेप्ट के लेवल पे एक्सप्लेन कर दिया। बट ERG थ्योरी is have empirical validation, clear cut empirical validation है इसका। एग्जिस्टेंशियल, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ नीड, 3 तरह के नीड्स पे बिहेवियर अलग अलग तरीके के होते हैं, तीनों एक्टिव साइमल्टेनियसली हो सकता है। और ठीक है, बहुत ग्रोथ करने की बात करने वाला, हायर लेवल की बात करने वाला जॉब नहीं है, रिलेशन में ब्रेकडाउन हो गया तो सब फिर वापस में देखो उसके बिहेवियर में फिर वही लोअर लेवल के लोग दिखने। कई लोगों को देखा होगा आपने, बहुत अच्छा थे, स्मार्ट थे, ये हो जॉब छूट गया, डाइवोर्स हो गया, देखो उसका बिहेवियर फिर कैसा हो जाता है। तो ये ERG उसका एक मिनिएचर सिस्टम कर सकते हो। मिनिएचर जैसे ये बहुत बड़ा सिस्टम है, तो इसी में एक छोटा सा सिस्टम है, इसको सिंप्लीफाई करके भी समझ सकते हैं। तो अल्डरफर refined the concept of Abraham Maslow, original idea was of Abraham Maslow। अब्राहम मास्लो के अल्टरनेटिव नहीं है, उसी को रिफाइनमेंट किया है। तो इस थ्योरी को आप अल्टरनेटिव मत कहना, ठीक है। तो अब आपने कितना चीज सीख लिया कि ह्यूमन बीइंग हैव डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ नीड and these needs differ in nature, these need form a hierarchy of influence, यानी what comes first and what comes later, उसमें एक ऑर्डर होता है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ नीड्स के बीच में कनेक्शन होता है, और कुछ नीड डी नीड होते हैं, कुछ नीड बी नीड होते हैं, और ये नीड्स जो है हमारे मोटिवेशन का बहुत बड़ा आधार है। और इसका एप्लीकेशन का पार्ट अगर 2 मिनट में समझे तो इसको ऑर्गेनाइजेशन में यूज काफी होता है, जैसे कि we need reward, not only reward but regard and recognition also। अगर आप एक जॉब ज्वाइन करते हो, वहाँ पे आपको पैसा मिलता है लेकिन रिगार्ड नहीं मिलता तो आप छोड़ देते हो, मैंने कहा था शुरुआत में। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन मैस्लो हायरार्की से देखा ना कि और भी नीड है ना, लोगों का एक नीड थोड़ी होता है जो आप केवल पैसा दे दिया और काम करता रहेगा।
तो यानी उसका कनेक्टेडनेस, वहाँ पे एक अच्छा माहौल भी होना चाहिए। तो देखो सोशल नीड को पूरा कर रहा है, लव एंड बिलोंगिंगनेस। घरों में उतने अच्छे वाइफ से लड़ाई कर रहा है, लेकिन वहाँ पे देखेंगे कि अपने कॉलीग के साथ बहुत अच्छा है। तो लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड पूरा भी हो रहा है। उसके बाद उसके नॉट ओनली रिवॉर्ड बट रिगार्ड भी अगर दे रहा है वहाँ लोग, तो और अच्छा फील करेगा। और उसके काम को रिकॉग्नाइज भी कर रहा है, तो उसका देखो ईगो नीड्स भी फुलफिल हो रहा है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे केवल आपको बेसिक नीड फुलफिल हो रहा है, और दूसरा है कि वहाँ पे बेसिक नीड और हायर ऑर्डर नीड्स भी पूरे हो रहे हैं। तो कोई किस में आप ज़्यादा चांसेस आप ज्वाइन करोगे, इसको करोगे। उसी तरीके से किसी का नीड, आप ऐसे कर समझ लो कि इंडिया में पंजाब के लोग को पैसे दो और वो कहो कि अब क्या करोगे पैसे को, तो वो देखो इन्वेस्ट कर देगा, क्योंकि उसमें ग्रोथ नीड ज़्यादा हो सकता है। लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को पैसे दो तो सेविंग अकाउंट में रख देगा, क्योंकि उसको डर है कि पैसा रहना चाहिए भाई। उससे सिक्योरिटी और सेफ्टी नीड इसमें ज़्यादा हो सकता है। तो देखो अलग अलग बिहेवियर, उसी पैसे का अलग अलग मोटिवेशन हुआ। यही है, उसी तरह से कोई सरकारी जॉब है तो कम सैलरी में भी चला जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी नीड ज़्यादा है, वो एड्रेस करता है वो, है ना। परमानेंट जॉब है, कई लोग को लगता है क्या है, मुझे सैलरी बताओ, मैं सैलरी पे काम करूंगा। तो वाई इंडिविजुअल डिफर इन देयर बिहेवियर, इट एक्सप्लेन्स। उसी तरीके से एजुकेशन में हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है। अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, चीज़ों को समझने के लिए मैस्लो हायरार्की एक पावरफुल टूल्स है। लेकिन उसमें जो कमियां थी उसको एल्डरफल ने एड्रेस किया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स। आप आंसर करिए किसी भी क्वेश्चंस को, देखिए यू विल बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू मैस्लो हायरार्की। तो चाहे आप यूपीएससी के लिए तैयारी करते हो, चाहे नेट जीआरएफ के लिए तैयारी करते हो, चाहे आप बीएड कर रहे हो, एमएड कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ रहे हो, वॉट एवर थिंग्स यू आर गोइंग थ्रू, if you are if you are aware, if you understand all these things, then you will be able to answer all sort of questions। किसी भी तरीके का क्वेश्चन आप आंसर कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई और चीजें रह गई तो आप हमें कमेंट में बताइए, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरीज। और अच्छा लगे या कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो आप जरूर हमें आप अपने कमेंट में दीजिए, देन डेफिनेटली मैं उससे मोटिवेटेड भी होता हूँ और आपको जवाब भी दूंगा। सो आई होप आई मेड दिस कॉन्सेप्ट क्लियर। मिलेंगे अगले किसी वीडियो में और बात करेंगे किसी और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। थैंक यू वेरी मच।